Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today theorem number 12.4, that is about the bisector of an angle. So first of all, I would like to give you a brief concept of angle, its parts, then it's a little about its bisector. तो सबसे पहले एंगल, the union of two non-collinear rays. What is the definition of an angle? What is meant by angle? The union of two non-collinear rays with a common endpoint is called an angle. The common endpoint is called vertex of the angle, whereas the two non-collinear rays OA, that is, and OB are called arms of the angle, ARMS, arms of the angle. The common endpoint, here it is O, is called vertex of the angle AOB. यानी यहाँ AOB जो है ये एक एंगल है और उसके दो बाजू हैं, दो आर्म हैं. It has two arms. OA, this is the first arm, and OB, this is the second arm, and their common endpoint named as O is called vertex of the angle. Now there are many types of angles. An acute angle, an angle whose measurement is less than 90 degree and greater than 0 degree is called an acute angle. What do you mean by an acute angle? An angle whose measurement is greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. Right angle, an angle whose measurement is equal to 90 degree is called a right angle. After this, straight angle, an angle whose measurement is equal to 180 degree is called a straight angle. इससे पहले obtuse angle भी है. An angle whose measurement is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. After this, reflex angle, an angle whose measurement is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. और लास्ट में an angle whose measurement is equal to 360 degree is called angle of a circle or angle of a complete turn or angle of one revolution. यानी angle of a circle is of 360 degree. एक सर्कल के अंदर टोटल 360 डिग्रीज होती हैं. उसके बाद फिर आगे एक और चीज़ है कि sometimes angle is positive and sometimes angle is negative. The standard unit for the measurement of an angle is degree as well as radian. There are two units for the measurement of an angle in two-dimensional plane. There are two units used for the measurement of an angle in 2D, two-dimensional plane. The first one is degree, the second one is radian. Degree, minute, second. It is a English system for the measurement of an angle. Radian is the large unit for the measurement of an angle. This is called circular measurement of the angle. तो ये दो यूनिट है टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर, डिग्री एंड रेडियन. और इसी तरह 3D के अंदर भी एक यूनिट है बच्चों एंगल की मेजरमेंट का,
3 डायमेंशनल प्लेन में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेडियन। वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो सर-ए-दस आज का थ्योरम है वो एंगल बाइसेक्टर के बारे में है। तो व्हाट इज मेंट बाय द एंगल बाइसेक्टर? A ray which divides an angle into two congruent parts is called an angle bisector. What is meant by the angle bisector? Angle bisector is a ray which divides an angle into two equal parts. अब आप फिगर में देखें, इस डायग्राम में AOB is an angle, whereas ON is the angle bisector that has divided this angle into two equal parts, that is POQ and POR। यानी आपका गिवन एंगल जो AOB था वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और किसने डिवाइड किया इसको? इस रे OM ने, जो कि इस एंगल का बाइसेक्टर कहलाता है। तो लिहाजा OM is the bisector of the angle AOB and the given angle has been divided into 2 equal parts। और कौन से 2 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं? MOB, या हम इसे POQ भी कह सकते हैं। इसी तरह MOA या AOM, सिमिलरली वी कैन नेम इट POR। ये हमने प्रूव क्या करना है कि अगर कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करे, यानी इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द एंगल बाइसेक्टर, इट विल बी इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। यानी क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा हो, वो उसी एंगल के आर्म से, यानी जो उसके आर्म्स हैं उनसे इक्यू डिस्टेंट होगा। यानी उसका जो डिस्टेंस है इस आर्म से और उसका डिस्टेंस इस आर्म से, दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट है। यानी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो फिगर में हमारे पास एंगल AOB है, OM इस बाइसेक्टर है, यानी एंगल हमारे पास जो है वो AOB इज एन एंगल और P इज अ पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर OM। P जो है वो OM के ऊपर एक पॉइंट है। और इस तरह OM ने, जो कि एंगल बाइसेक्टर है, इसने एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और वो 2 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो 2 इक्वल पार्ट्स आपके सामने ये बन रहा है हिस्सा MOB एज वेल एज POA या POB और POA। These are the 2 parts in which the given angle has been divided। अब आते हैं टू प्रूव की तरफ। P is equidistant from OA and OB, यानी P का जो डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से, ये दोनों बराबर हैं। This is what we have to prove in this theorem। यानी P is equidistant from the arm OA, यानी डिस्टेंस PR is equal to distance of the point P from the angle arm OB, यानी that is distance PQ। इन दोनों डिस्टेंसेस को हमने इक्वल प्रूव करना है। ये लिखा हुआ है PQ is congruent to PR। ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस थ्योरम के अंदर। कंस्ट्रक्शन वर्क इसमें देखें, ड्रॉ PR, यानी P से हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। PR परपेंडिकुलर ऑन OA, यानी P से एक परपेंडिकुलर OA के ऊपर आएगा और P से एक परपेंडिकुलर हमने OB के ऊपर ड्रॉ करना है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है कि ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स PR ऑन OA एंड PQ ऑन OB। अब बच्चों आपको बात बता दें कि यहाँ परपेंडिकुलर के बारे में 2 फैक्ट्स हैं दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल, कि किसी भी पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है लाइन के ऊपर। यानी वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एनी लाइन आर लाइन सेगमेंट। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। और ज्योमेट्री के अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसिडर किया जाता है।
यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब हम ज्योमेट्री की फिगर्स के अंदर डिस्टेंस की बात करते हैं तो दैट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। यानी परपेंडिकुलर इज कंसिडर्ड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन। यानी किसी पॉइंट और लाइन के दरमियान अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर देंगे, वो उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही शो करेगा। तो लिहाजा हमने P से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक PQ ऑन AB OB सॉरी, और एक PR ऑन OA। ये हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क है। ड्रॉ PR परपेंडिकुलर ऑन OA एंड PQ परपेंडिकुलर ऑन OB। ये तो आ गया कंस्ट्रक्शन वर्क। इसके बाद आता है प्रूफ। सिमिलरली प्रूफ के दो पार्ट्स हैं, एक स्टेटमेंट्स वाला हिस्सा है और एक रीजन वाला है। अब आप फिगर में देखें, दो ट्राइंगल्स हमें नजर आ रही है एंड बोथ द ट्राइंगल आर राइट एंगल ट्राइंगल। और वो कौन कौन सी दो ट्राइंगल है जिनकी हम कॉरेस्पॉन्डेंस अभी शो करेंगे। तो एक है ट्राइंगल POQ। लुक एट दिस ट्राइंगल POQ, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एट अ राइट एंगल एट R। द अदर राइट एंगल ट्राइंगल इज POQ, this is the second right angle triangle, yani POQ he has taken at the first step and POR he has taken at the second step। फिर उसके बाद आप इन दोनों ट्राइंगल में देखें, नाउ वी आर टू कंप्लीट एनी वन ऑफ द पोस्टुलेट्स कि इस ट्राइंगल्स के अंदर हमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट जो है वो चीज नजर आ रही है। तो सबसे पहले OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, यानी साइड OP जो है वो OP के कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन साइड, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड सेल्फ कॉन्ग्रुएंसी। इसे सेल्फ कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, ये ऊपर कॉमन साइड है। नंबर 2, एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO, ये इस एंगल की इक्वल है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। और क्या रीजन है, ये कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमने वर्क किया था वो यही किया था कि PR इज परपेंडिकुलर टू OA। अब PR जब परपेंडिकुलर OA के ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि PR इज परपेंडिकुलर टू OA, इट मींस PRO इज एन एंगल ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री, यानी दिस इज अ राइट एंगल। सिमिलरली PQ इज परपेंडिकुलर टू ऑन OB, इट मींस PQO इज अनदर राइट एंगल। इसलिए इन दोनों को यहाँ राइट एंगल शो किया गया है और ये दोनों इक्वल हैं बीइंग एज राइट एंगल्स, और इसकी रीजन है कंस्ट्रक्शन। अब हमें एक और चीज चाहिए, दैट वी हैव एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR। POQ ये एंगल और ये POR की इक्वल है। ये हमें गिवन से कॉन्सेप्ट मिला, क्योंकि गिवन में ये क्या था कि OM इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल AOB, लिहाजा इसने एंगल AOB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और वो दो इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं, POQ एज वेल एज POR, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, और इसके आगे हमने लिख दिया गिवन। तो लिहाजा अब हमारा एक पोस्टुलेट जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर हमें आ रहा है। और वो क्या पोस्टुलेट्स है, यानी देयरफॉर ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। और पोस्टुलेट कौन सा बना बच्चों, देखो गौर से, साइड एंगल एंगल, यानी साइड एंड टू एंगल। तो साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय दिस पोस्टुलेट, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, फिर उनकी रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, सो but are concerned with the side PQ and PR, so therefore PQ is congruent to PR, corresponding sides of congruent triangles. So this is what we have to prove in this theorem। ये भी एक बड़ा सिंपल और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब ये तीन थ्योरम एंगल्स के हवाले से हैं। पहले तीन थ्योरम हमने राइट बाइसेक्टर के हवाले से प्रूव किए हैं, अब ये तीन थ्योरम एंगल्स के हवाले से हैं। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर में टोटल 6 थ्योरम्स हैं। अब 2 रह गए आपके, ये नंबर 4 पे है। तो क्या है थ्योरम आपका कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो पहला थ्योरम क्या था,
एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो यहाँ एंड पॉइंट्स की जगह एंगल के आर्म्स आ गए और यहाँ राइट बाइसेक्टर की जगह क्या आ गया, सिंपल एंगल बाइसेक्टर आ गया। आई होप कि बच्चों आपको इसकी समझ आ गई है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 4। तो कल हम इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 5 करेंगे। थैंक यू।